Hello everyone, welcome to the Enlightening Lantern. I have started with a completely new series, Revision 25-26, and actually this is a completely new video. You must all be aware that initially I had the channel Reno's Englishpedia, but due to certain technical issues I had to start over. So this series is the first series that I'll be posting on my new channel, that is the Enlightening Lantern. And I hope all of you who come here to this channel become a part of my family and greatly benefit from this series and whatever other videos I put up. So without wasting any more time, let's get started. Okay, beta ji, we are starting with the chapter On the Face of It, written by Suzanne Hill. On the Face of It, story है कि play है कि it's a fact, it's a factual description of something. It's a play. Play का मतलब क्या होता है? How is a play different from a story? Quick, इतना टाइम ही चाहिए, फटाफट डायलॉग्स है, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है, राइट? कोई नरेट नहीं कर रहा है, नरेट कर रहा होता तो नरेटिव होती, स्टोरी होती, यहाँ पे डायलॉग्स है, डायरेक्टली बात हो रही है. ये वाला जो प्ले है ये 3 एक्ट्स में है. फर्स्ट एक्ट इज इन मिस्टर लैम्स गार्डन, सेकेंड एक्ट इज एट डेरीज होम and third is again when he returns to Mr. Lamb's garden. तो अब शुरुआत में क्या हो रहा है? डेरी जो है वो एक दीवार क्लाइंब करके, वॉल क्लाइंब करके एक गार्डन में एंटर हो रहा है. What is his reason for entering the garden? Why is he climbing the wall and what is his reason for entering the garden? For peace. What does he believe about the house? No one. That it is isolated. There is no one living at the house. Why does he believe that the house is isolated, no one is living at the house? There are no curtains. Okay. But when he enters, what happens? He suddenly finds Mr. Lamb in the garden and he is scared. He wants to leave the garden. But what does Mr. Lamb do? He stopped. He reassures him. बोलता है कि मेरे यहाँ पे होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए. I leave my gates open. तुम्हें गेट के ऊपर छलांग मार के आने की जरूरत नहीं थी वॉल्स के ऊपर से. You could have easily come through the gates. अब इस पॉइंट पे what do we understand about Derry and what do we understand about Mr. Lamb? Mr. Lamb is open-hearted person. Open-hearted है, Mr. Lamb kind है. What else? Concerned. He doesn't want to send Derry away, in a fearful manner. And what do you understand about Derry? Derry के बारे में आपको क्या समझ में आता है? He's not open with them. He is not open with anyone. He doesn't want to talk to anyone. He had just come there because he thought that the house was vacant. ठीक है? अब डेरी का ये सोच क्यों है? What has happened to Derry? One side of his face has been burnt by acid. It appears hideous, right? जिसके कारण सोसाइटी उसके बारे में बातें करती है. कोई उसको सिंपथाइज करता है कि बेचारा, कोई जैसे उसकी मदर है वो फिक्र करती है कि व्हाट विल हैपन टू हिम in his future. Then there are people who are unkind and who say that people like Derry should be isolated. They should be kept with people of their own kind. तो इन सब बातों का जवाब मिस्टर लैम कैसे देते हैं? डायरेक्टली बोलते हैं कि लोग गलत हैं, तुम्हारी मम्मा गलत है? नहीं. तो फिर वो what does he do? He doesn't. He gives, yes, he doesn't directly talk about those impressions or suggestions or views. He talks about all these things. And he says, उनका एक ही चीज है, he says that his motto is acceptance. Acceptance, कुछ भी, whatever has been created by God is beautiful. People are beautiful creations of God, nature beautiful creations of God. He doesn't believe that anything needs to be alienated or isolated, right? So that is the reason
मिस्टर लैम भी एलियनेटेड है, डेरी तो है बिकॉज ऑफ हिज हाफ बर्न फेस. What about Mr. Lamb? Is he also alienated? Yes. Why is Mr. Lamb alienated? Because he has changed life. He has a tin leg. किसी वॉर में बम फटा था and due to that bomb burst, he had lost one of his legs and now he had a tin leg. Right? Due to which children call him Lemmy Lamb. यहाँ तक समझ में आ गया बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. अब जब डेरी ये सारी बातें करता है, राइट, कि मेरा फेस बॉन्ड है, लोग मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलते हैं, इवन माई मदर डजंट वांट टू किस मी ऑन द बर्न साइड ऑफ माई फेस, तो हमें डेरी का पेसिमिस्टिक नेचर समझ में आता है, उसका अग्रेशन समझ में आता है. बट इन सब बातों के लिए जो मिस्टर लैम है वो बातें करते हैं. अब वो कौन सी बातें कर रहे हैं, मैं क्विक रिकैप दे रही हूँ. फर्स्ट इज हिज थॉट अबाउट वीड्स. व्हाट डज ही थिंक अबाउट वीड्स? Weeds क्या होता है? Unwanted. It's an unwanted plant. Any plant which you don't want, that becomes a weed. जरूरी नहीं है कि अगर आप, मतलब हो सकता है कॉर्न का दाना अगर वो अंकुर हो जाए, अगर वो प्लांट बन जाए और आपने फ्लावर्स लगाए हुए हैं बीच में, तो वो भी हो सकता है किसी के लिए वीड हो. क्यों? क्योंकि उसको फ्लावर्स चाहिए, उसको वो कॉर्न का स्टॉक नहीं चाहिए. Any unwanted plant is known as a weed. But what does Mr. Lamb believe about weeds? That they are similar to the other plants. He says it is humans who have characterized one plant as a flower and one plant as a weed. All of them are green, all of them have been created by God, and we do not need to throw out the weeds. What has Mr. Lamb done in his garden? मिस्टर लैम ने खुद के गार्डन में क्या किया है? He has grown a special area, full of weeds. पूरे उस एरिया को उन्होंने वीड से बना दिया है, मतलब स्पेशली वो वीड्स उगा रहे हैं अपने गार्डन में. He is not growing any other plant in that area. So we get to know his concept about weeds. Second, वो बात करते हैं cobwebs. What are cobwebs? Cobwebs क्या होते हैं बेटे? मकड़ी के जाले, स्पाइडर वेब्स को cobwebs बोला जाता है. नॉर्मली cobwebs को क्या किया जाता है? We immediately remove them. But what does Mr. Lamb think about the cobwebs? How does he describe the cobwebs? He calls them silken threads, silver silken threads, right? तो मतलब उनको जिस चीज में हमें गंदगी नजर आ रही है, मिस्टर लैम को उसमें क्या नजर आ रहा है? ब्यूटी, राइट? अगेन एक्सेप्टेंस. हम हैं जो एक चीज को अगली और एक चीज को ब्यूटीफुल कह रहे हैं, बट मिस्टर लैम के लिए इवन द कॉबवेब्स आर ब्यूटीफुल. अब जब ये बातें डेरी सुनता है तो वो अपने आप को क्या बोलता है? वो कौन सा एग्जाम्पल देता है कि लाइफ क्या नहीं है? लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल. बोलते हैं लाइफ एक फेरी टेल नहीं है. फिर वो स्टोरी ब्यूटी एंड द बीस्ट की बोलता है. वो बोलता है कि ब्यूटी एंड द बीस्ट में ब्यूटी ने बीस्ट को किस किया था एंड ही टर्न्ड इनटू अ चार्मिंग प्रिंस, राइट? ये फेरी टेल थी. बट मेरी लाइफ में अगर मुझे आके फर्स्टली तो कोई किस नहीं करेगा. अगर किसी ने किस कर भी दिया, देन आई विल नेवर टर्न हैंडसम, आई विल नेवर टर्न चार्मिंग. मेरा जो आधा फेस है वो कभी भी ठीक नहीं होगा. बेटे आपको समझ में आ रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. श्योर? नहीं आ रहा तो पूछ लो कि मैम मेरा कोलिंक नहीं बना है. पक्का? ओके. And he says that my face, if someone kisses me, I will never turn into a handsome person. Then he talks about his mother. कि लोगों को तो छोड़ो, किसी और गर्ल को तो छोड़ो. Even my own mother doesn't kiss me on the burnt side of the face. तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि मदर का रोल क्या है डेरी की लाइफ में. मदर इज द सोल रीजन दैट ही इज बिकमिंग अनकॉन्फिडेंट. Mother has led to Derry becoming
unconfident. She is always worried about his future. She is always worried about him meeting any new people, right? In fact, उन्होंने उसके burn face को accept नहीं किया है. Accept किया होता तो she would have kissed him on the burn side. छोटे बच्चे को जब चोट लगती है तो हमेशा मम्मा उसकी चोट पे किस करते हैं और उसको पूछते हैं कि बेटा ठीक हो गया. वो बच्चा भी बोलता है हाँ. बट डेरी के साथ ये इमोशनल हीलिंग नहीं हुई है, राइट? ओके, देन ही टॉक्स अबाउट कर्टन्स एंड गेट्स का तो शुरुआत में ही आ गया दैट आई डोंट लाइक कर्टन्स. व्हाई डजंट मिस्टर लैम लाइक द कर्टन्स? It blocks the light, it blocks the wind, it blocks the rain, it blocks the sound coming from outside. मतलब उनके लिए चाहे अंधेरा है, चाहे लाइट है, चाहे बारिश है, चाहे बाहर की आवाजें हैं, उनको वो हर चीज जो गॉड दे रहा है वो सुननी पसंद है. उनको ऐसे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी शट आउट करना है. सो देयर आर नो कर्टन्स ऑन द विंडोज and the gates are always open. Okay, then he talks about the next thing जो डेरी को influence करती है, that is his meaning of friends. Who according to Mr. Lamb is a friend? Any person. As long as someone is not your enemy, then automatically it means they are your friends, right? अगर आपको मैं नहीं जानती हूँ, नेम इम्पोर्टेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, एड्रेस इम्पोर्टेंट नहीं है, रोज बात करना इम्पोर्टेंट नहीं है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट? एज लॉन्ग एज समवन इज नॉट योर एनिमी, दे ऑटोमेटिकली बिकम योर फ्रेंड्स. क्लियर हो गया? यहाँ पे कुछ और आपको पूछना है? अब ये बातें डेरी ने पहले कभी किसी से सुनी थी? नहीं. ही सेज यू आर द फर्स्ट पर्सन टू टॉक टू मी लाइक दिस. I want to talk to you more. मैं आपसे और बातें करना चाहता हूं. उसके बाद हमिंग ऑफ बीज, जो बीज भिनभिनाती है वो हमें कैसा लगता है? बजिंग, इरिटेट हो जाते हैं हम, उनको अपने आप से हटाने की कोशिश करते हैं. बट मिस्टर लैम को हमिंग ऑफ द बीज, बजिंग ऑफ द बीज में क्या सुनाई देता है? सिंगिंग ऑफ द बीज. उनको उसमें भी म्यूजिकल इफेक्ट नजर आता है. बच्चे उनको लेमी लैम बुला के टीज करते हैं. बच्चों की आदत होती है किसी की भी दुखड़े का मजाक उड़ाना. बट मिस्टर लैम उनके टीजिंग से गुस्से होते हैं. ही एक्सेप्ट्स द टीजिंग, बट व्हाट डज ही डू? नॉट ओनली एक्सेप्ट, नॉट ओनली लाफ, व्हाट डज ही डू फॉर द चिल्ड्रन? He makes jellies from the crab apples that he picks, and he makes honey from the bees he has cultivated. उनके गार्डन में उन्होंने बीज को भी रखा हुआ है और क्रैब एप्पल्स के ट्रीज भी हैं, तो वो उनसे जेलीज और टॉफीज बनाकर बच्चों को देते हैं, राइट? तो उनकी ये दो फेवरेट हॉबीज हैं. मिस्टर लैम की ये दोनों फेवरेट हॉबीज हैं, राइट? तो हमें समझ में आता है. ओके, एंड देन फाइनली व्हाट डज ही टॉक अबाउट? Finally, what does Mr. Lamb talk about? He talks about the incident of the man who was afraid of dying. Right? आपको मैं हमेशा बोलती हूँ हंसे तो फंसे. ये कहावत आपको याद है? मैंने क्लास के फर्स्ट टाइम जब ये चैप्टर कराया था आपको बताई थी, हंसे तो फंसे, कुड़ी हंसी ता फंसी. पंजाब में ये आपका बहुत फेमस एडेज है, कुड़ी हंसी ता फंसी. सेम चीज यहाँ पे है. इस मैन को इतना डर लगता था मरने से दैट ही हैड लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज रूम. He wouldn't venture out because he was afraid of dying. But then what happened one day? A painting fell on his head, killing him. Now hearing this story, what was Derry's reaction? He laughed. कुड़ी हंसी ता फंसी. Derry हंसा, और Derry हंसा तो फंस नहीं गया. मतलब वो तो मैंने कॉलिंग किया था, मतलब उसने मिस्टर लैम को एक्सेप्ट कर लिया. अब तक का जो प्रोसेस था ये डेरी का टर्निंग था. वो धीरे धीरे उसके जो सोच थी, उसका जो थॉट प्रोसेस था, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था.
But the moment he laughed, that is the point where he is completely attuned to Mr. Lamb. अब वो मिस्टर लैम को अपना दोस्त मानने लग गया है. इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि डेरी का जो नेगेटिविटी है इज टर्निंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी. मिस्टर लैम और मिस्टर डेरी बिल्कुल फॉइल्स हैं, कंट्रास्ट है टू ईच अदर, जैसे जानजी और सोफी है इन गोइंग प्लेसेस, कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर. तो एक्स्ट्रापोलेशंस यहाँ पर हो सकते हैं. क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब उसके बाद अगर हम थीम की बात करें, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, बट अब जो हमें डिस्कस करना है तो उसके लिए थीम जानना जरूरी है. व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर? एलियनेशन एंड आइसोलेशन बाय सोसाइटी. और मिस्टर लैम किस चीज को एडवोकेट करते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल दैट इज क्रिएटेड बाय गॉड. सोसाइटी की सोच धारा क्या है? अगर आप डिसेबल्ड हो तो आपके बारे में कुछ ना कुछ सस्पिशियस है. सोसाइटी की आदत है रूमर्स स्प्रेड करना किसी के भी बारे में इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू. सेकेंड, सोसाइटी सोचती है कि ऐसे लोगों को नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, उनको अलग से एरिया में रहना चाहिए. तो यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रापोलेशन आता है अक्रॉस द टेक्स्ट, अक्रॉस द बुक, बियॉन्ड द बुक्स, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन होता है एक्सेप्टिंग द डिसेबल्ड, द मेंटली डिफरेंट चिल्ड्रन इनटू द नॉर्मल स्कूल. कोई बच्चा ब्लाइंड है, कोई बच्चा डेफ है, कोई बच्चा थोड़ा सा मेंटली स्लो है, या ADHD है, या डिसलेक्सिक है, या और व्हाट इज दिस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स. ए से था, क्या था वो, ऑटिज्म. कोई बच्चा ऑटिस्टिक है. ये सारे बच्चों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ना चाहिए, राइट? बिकॉज जब वो नॉर्मल बच्चों के साथ होंगे दे विल फील नॉर्मल. इफ दे फील नॉर्मल देन दे कैन डू एवरीथिंग दैट वी थिंक अ नॉर्मल चाइल्ड कैन डू, राइट? तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रापोलेशन आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ. एज चिल्ड्रन क्या ये बच्चों को हमारे स्कूल में हमारे साथ होना चाहिए या नहीं, इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है. तो मिस्टर लैम अब ये जो सोसाइटी के व्यूज हैं, who reflects these views in the chapter? The mother. जब मदर जब डेरी मिस्टर लैम बोलते हैं कि अच्छा बहुत बातें हो गई है, मैं तुमसे थक गया हूं बातें करके, अब मुझे अपने एप्पल्स तोड़ने जाना है, राइट? तो अब यहाँ पे डेरी किस बात के लिए वरिड है? व्हाई इज ही वरिड नाउ? That Mr. Lamb has a thin leg. If he climbs the ladder, he may fall and break his neck and die. अब तक डेरी किसी के बारे में भी worried था? He was obsessed with himself, right? खुद से ही obsessed था कि मेरे साथ ये problem हो रहा है. Now this is the first time after that laugh that he is worried about some other person, and he says, "I wish I could help you." मतलब अगर मैं रुक सकता तो आई वुड हैव क्लाइम्ब द लैडर एंड पिक्ड द क्रैब एप्पल्स. मैं आपको चढ़ने नहीं देता, बट लेट हो रहा है और मैं रुक नहीं सकता. तो मिस्टर लैम बोलते हैं ऐसा कोई काम है जो आप नहीं कर सकते. आप कोई काम नहीं करते हो बिकॉज यू डोंट वांट टू डू. इट इज नॉट दैट यू कांट डू. व्हाट इज द डिफरेंस वांट एंड कांट? वांट का मतलब चाहते हो. अगर आप चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. कोई नॉर्मल मुझे बोले कि 10 वीडियोस एक दिन में अपलोड करो तो मैं उसका सर तोड़ दूंगी. बट आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, व्हाट एम आई डूइंग? एवरी डे without fail I am uploading around 7 to 8 videos. Do you think it's easy? No, but I want to do it, right? So I'm able to do it. But when I say I can't do it, matlab, am I not able to do it or am I not willing to do it? I am not willing to do it. I am not ready to
कॉज टेंशन, वरी और स्ट्रेस टू माई सेल्फ। मैं अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, मैं कंफर्टेबली जो काम हो सकता है वो करना चाहती हूँ। तो मिस्टर लैम यही बोलते हैं कि यू हैव टू स्ट्रॉन्ग लेग्स, है ना। तुम्हारा सिर्फ फेस बॉन्ड है, तुम्हारे फैकल्टी सारे हैं, तो तुम सॉरी, मदर इज ऑल्सो वरिड अबाउट हिज फ्यूचर। ये डिस्कशन रह गया था कि इसका आगे चल के क्या होगा। तो मिस्टर लैम उस टाइम पे बोलते हैं कि फ्यूचर को तुम्हारे क्या हुआ है, तुम्हारे पैर चलते हैं, तुम्हारे हाथ चलते हैं, यू आर एबल टू सी, टॉक, हियर, सो यू कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज देयर टू स्टॉप यू, हैव अ गुड ब्रेन। आप मेंटली रिटार्डेड नहीं हो कि आपको कुछ ना करने में दिक्कत आए, राइट। तो अब यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि यू हैव टू स्ट्रॉन्ग लेग्स। इफ यू वांट यू कैन रन होम, इन्फॉर्म योर मदर एंड यू कैन रिटर्न। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू एक्सेप्ट योर ओन डिजायर, योर ओन वांट। तुम नहीं आना चाहते हो इसलिए तुम आओगे नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं आ सकते। और इस बात से डेरी गुस्से होके, अग्रेसिव होकर बोलता है कि मैं आना चाहता हूं और मैं वापस आऊंगा, राइट। दिस इज वेयर द फर्स्ट सीन एंड्स। द सेकेंड सीन इज डेरीज होम, द कन्फ्रंटेशन विद मदर। अब तक डेरी ने अपनी मदर के अगेंस्ट नहीं गया, वो जो भी बोलते थे वो चुपचाप से सुन लेता था। अब जब डेरी अपनी मम्मा को बोलता है कि मुझे मिस्टर लैम के घर पे जाके उनको हेल्प करनी है, व्हाट डज द मदर से? I have heard things about him, rumors about him। मतलब वो कहना चाहते हैं कि वो डिसेबल्ड है तो वो अच्छा इंसान नहीं है। What does Derry reply to this? You shouldn't believe all that you hear। लोगों की तो आदत है कुछ भी बोलते हैं, but without having actually talked to Mr. Lamb, how can you think of him to be a suspicious person? Mother tells him not to go, but he is defiant. Defiant. He is defiant. He tells her कि मैं तो जाऊंगा, मुझे आप जाने से नहीं रोक सकते। And he runs to Mr. Lamb's garden। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकेंड सीन जो है वो एंड हो जाता है। क्लियर। अब थर्ड सीन है मिस्टर लैम का गार्डन। डेरी गार्डन के गेट पे पहुंचता है और जोर की गिरने की आवाज आती है, राइट, थम्पिंग साउंड आता है। एंड डेरी रशेस इनसाइड। व्हाट डज ही फाइंड ओवर देयर? Mr. Lamb is lying on the ground and he is probably dead। मैं probably word यूज कर रही हूं क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ है। probably क्यों आता है? क्योंकि पहले ये प्रिडिक्शन हुआ है। मतलब एक डेरी ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट नहीं, काइंड ऑफ इंट्यूशन, कि आप लैडर पे चढ़ोगे, आपका पैर फिसल जाएगा, आप गिर जाओगे, यू विल ब्रेक योर नेक एंड डाई। तो उसके कारण हम एज्यूम कर रहे हैं दैट ही हैज प्रोबेबली डाइड। और यहाँ पे वो जोर जोर से रोता है और मिस्टर लैम को बोलता है मैंने कहा था मैं वापस आ जाऊंगा, मैं वापस आ गया। अब ये वाली लाइन, मैं वापस आ गया, व्हाई डज डेरी से दिस? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन? What did Mr. Lamb tell him initially, due to which he says that I came back? No one returns, right? जब वो बात कर रहे होते हैं, जब डेरी बोलता है कि मुझे घर जाना है, मैं वापस आऊंगा, तब पहली बार मिस्टर लैम्ब ऐसी कोई बात करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो भी उदास हैं। उनकी उदासी क्यों थी? बिकॉज ही टू हैज बीन एलियनेटेड एंड आइसोलेटेड बाय सोसाइटी। He says that they say they will come back, they always say they will come back, but they never do। हर कोई दोस्त बन के जाता है मेरे से बात करने के बाद कि हम दोबारा आएंगे, बट जब सोसाइटी की बातें सुनते हैं they never return, right? So I know Derry will not return। और वही बात होती है that Derry when he says he says that I came back, मैं वापस आया, दूसरा और कोई नहीं आया, but मैं वापस आया, I am your friend, but there is no response from Mr. Lamb। So this is almost the entire chapter। हो सकता है कोई एक आधा पॉइंट बीच में हो जो छूट गया है, प्लीज चैप्टर रीडिंग जरूरी है, राइट? यू हैव एनी क्वेश्चंस?
अच्छा बेटा जी, मैं ना आपको एक बात क्लियर बता रही हूँ, हर चैप्टर जो भी आप वीडियो से पढ़ रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे नोट्स डाल दिए, अलग अलग व्यू पॉइंट के नोट्स डाल दिए हर चैप्टर के। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको वोकैबुलरी, आपको डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट चीजें पता चलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना। सिर्फ वो जो 2 मिनट रिवीजन वीडियोस में अभी अपलोड होने वाली है 10 तारीख को, उसका डिस्क्रिप्शन ब्लॉक्स ब्लैंक जाएगा। उसका मेरे पास अभी टाइम नहीं है टू राइट इन द डिस्क्रिप्शन, बट द अदर चैप्टर्स all have description boxes. So you have any questions now? Bete, it shows that he is a part of society, he is a friend of Mr. Lam. दोस्त को टीज करता है तो दोस्त को बुरा नहीं लगता है, जब कोई और टीज करता है तो बुरा लगता है। तो उसका वो दोस्ती का एहसास है जिसके लिए वो मिस्टर लैम को एट द एंड लेमी लैम बुलाता है। राइट? एनीथिंग एल्स? आप कुछ पूछ रहे थे बेटे? कोई पूछने लगा था अभी कुछ? हाँ, ही सेड आई विल कम बैक जाने से पहले, जब वो बोल रहे थे यू विल नॉट कम बैक, नो वन डज, तो डेरी जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा था आई विल कम बैक, आई विल कम बैक, तो वो उसका प्रॉमिस था। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके बेटा जी, ऑन द फेस ऑफ इट टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द फेस ऑफ इट का टाइटल का मीनिंग क्या है? व्हाट डज इट मीन ऑन द फेस ऑफ इट? What appears? ऊपर से डेरी कैसे अपीयर होता है? लाइक अ बीस्ट, बट इंटरनली वो क्या है? अ स्केर्ड चाइल्ड, अ चाइल्ड who wants, who wants to avoid society. वो डरा हुआ है, ऊपर से डिफाइंड है, अग्रेसिव है, बट अंदर से वो डरा हुआ है। मिस्टर लैम ऊपर से कैसे है? कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, बट अंदर से कैसे है? लोनली एंड सैड बिकॉज सोसाइटी हैज एलियनेटेड हिम। सोसाइटी कैसे अपीयर होती है? वेरी बेनोवलेंट, बड़ी अच्छी सोसाइटी सबके लिए बनी है, बट अंदर अंदर कैसी है? अंडर दैट फेस, व्हाट इज द रियल फेस ऑफ द सोसाइटी? वेरी क्रूअल। राइट? तो ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब है कि ऊपर से जो नजर आ रहा है अंदर से वो वैसा नहीं है। So it's a very important title. Clear? So with this we come to the end of the video. I hope that you liked it and it helped to clarify some doubts and added more knowledge to what you already knew. So if you liked it, please do consider subscribing to my channel and liking the video, and do press the bell icon for further notifications. See you soon everyone.